Good morning, students. We today we learn control of level of hormones. Yesterday we learned about hormonal system and hormonal glands. How many hormonal glands are found in human bodies, and what is the effect of its secret hormones. Then today we learn control of level of hormones, about control and coordination. We have studied about the control of nervous system over secretion of hormones. Some of the glands themselves affect the secretion of other glands. आज हम हार्मोन्स की मात्रा का नियंत्रण हमारे बॉडी में किस प्रकार होता है ये पढ़ेंगे. पिछले लेक्चर में हमने हार्मोनल ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, कितने ग्लैंड्स हार्मोनल ग्लैंड्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, इसको हमने जाना. तो सबसे अधिक हार्मोन्स जो है वो पीयूष ग्रंथि में बनते हैं. हमने कल बताया था कि ब्रेन में है ना ये होता है, और इसके द्वारा सभी हार्मोनल ग्लैंड का कंट्रोल किया जाता है कि कितनी मात्रा में और कब कौन से ग्लैंड में कितनी हार्मोन्स बनना चाहिए. मैक्सिमम varieties and amount of hormones are secreted by the pituitary glands. The hormones secreted by the gland have various roles in one body, like growth and development, use of sugar, lactation in mother's breast, feeding their babies, etc. Apart from these, hormones secreted from pituitary control the release of hormones by several other glands like pancreas, thyroid, adrenal glands, testes, ovaries, etc. है ना. तो सबसे अधिक हार्मोन्स कहाँ बनता है? पीयूष ग्रंथि में बनता है. क्यों? क्योंकि इन्हीं हार्मोन्स के द्वारा बाकी हार्मोनल ग्लैंड्स में हार्मोन्स के बनने का नियंत्रण किया जाता है. इसके द्वारा जो हार्मोन्स हैं वो वृद्धि, शर्करा का उपयोग, स्तनपान कराने वाली माताओं में दुग्ध के निर्माण के अलावा ये थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, अंडाशय, वृषण जैसे सभी हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथियों की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं. ओके. The hormones released from other glands also affect the release of the respective pituitary hormones. For example, hormones of pituitary glands control the secretion of thyroxine from thyroid. If thyroxine level increases in blood, the release of pituitary hormones stop. The size of testes and ovaries increase during adultness under the influence of pituitary hormones. These glands stimulating hormones of pituitary glands also maintain level of hormones secreted by various ovaries and testes. तो किशोरावस्था में अंडाशय और वृषण का आकार पीयूष ग्रंथि के द्वारा निर्मित हार्मोन्स के कारण ही बढ़ पाता है. पीयूष ग्रंथि जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो उद्दीपक हार्मोन्स होता है, गोनेड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के उत्पादन को इस प्रकार नियंत्रण होता है इसके द्वारा कि शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा जो है वो स्थिर है. इसी प्रकार पीयूष ग्रंथि का एक अन्य हार्मोन्स वृद्धि से संबंधित होता है और ये इंसुलिन के विरोधी की तरह कार्य करता है. एक और दूसरा हार्मोन्स है थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है. जब भी ब्लड में थायरॉक्सिन हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाता है तो इसका उत्पादन पीयूष ग्रंथि में रुक जाता है. कुछ हार्मोन्स की क्रिया जो है वो और भी त्वरित होती है और इसका उत्पादन जल्दी बंद चालू होते रहता है ना. तो हार्मोन्स रिलेटेड टू ग्रोथ secreted by the pituitary act antagonistically to the hormones insulin. The release of certain other hormones by the pituitary accelerate the release and activity of other hormones that may further influence the start and stop of release of the respective pituitary hormones.
One such hormones is a type of adrenal gland stimulating hormones that stimulate the secretion of hormones from the inner part of the adrenal glands. Our heart rate increase in blood flow into muscles at a higher rate during emotional situation or during exercise due to the effect of these adrenal hormones. The effect of these adrenal hormones as well as the stimulating hormones is very fast, contrary to most hormones that slowly affect our function. The release of stimulating hormones stop when there is adequate amount of the required adrenal hormones in ब्लड. ऐसे एक हार्मोन्स जो है वो एड्रिनल ग्लैंड से स्रावित होता है, एड्रीनेलिन, जो कि एड्रिनल ग्लैंड के मिडिल भाग में बनता है. ये हमारे जो इमोशनल्स परिस्थिति होता है ना, उसमें, और जब हम एक्सरसाइज करते रहते हैं, कसरत या शारीरिक काम करते रहते हैं, उसके दौरान ये हमारे हार्ट को स्फूर्ति प्रदान करता है और ब्लड को उन मांसपेशियों में भेज देता है जहां उसकी ज़रूरत होती है. एड्रीनेलिन का असर बहुत जल्दी होता है, पर ज़्यादातर हार्मोन्स का असर होने में कई घंटे या कई दिन लग सकते हैं. प्रोग्रेसिव research in this field has stabilized the fact that most of the action in our body are carried out by balance in two antagonistic pathway. We have come to know a lot about hormones now, and if we do not use our knowledge properly, it may affect our health adversely. जैसे जैसे और जानकारियाँ हमको मिलती जा रही है और इससे हमको पता चलते जा रहा है कि हमारी किसी भी संरचना या कार्य की स्थिरता दो परस्पर विरोधी प्रतिक्रियाओं के संतुलन, बैलेंस पर डिपेंड करता है. आज हम हार्मोन्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हम इस जानकारी का उपयोग शरीर की आवश्यकता अनुसार ना करें तो हम जो है वो बीमार पड़ सकते हैं, अस्वस्थ हो सकते हैं, हमारे हेल्थ पर इसका इफेक्ट पड़ेगा. A connection between nervous system and glands that release hormones exists all through our body. An important and extensive connection being formed in the brain with a strand of nervous tissues and the pituitary. This connection between nervous system and gland secreting hormones aids in all life process and proper functioning of our body. It is because of this connection that often your doctor suggests you to stay in high spirits during your illness so that you may be cured quickly. Cured quickly, है ना. तंत्रिकाओं और हार्मोन्स के द्वारा सूचनाओं के आवागमन की प्रक्रिया जो है एक दूसरे पर डिपेंड करती है और आपस के कोऑर्डिनेशन से चलते रहती है. ब्रेन में इसका जो विशेष स्पेसिफाइक जो एरिया होता है उसमें नर्व्स और तंत्रिकाओं का और पीयूष ग्रंथि, है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड के कार्य का बैलेंस जो है वो बना रहता है. ऐसे ही हमारे शरीर के अन्य अंग जिनसे कि हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, उन सभी से भी तंत्रिकाएं जुड़ी रहती है. हार्मोन्स और तंत्रिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका से हमारे शरीर के काम जो है वो अच्छे से चलते रहते हैं और संगठित रूप में ये चलते रहते हैं. तो टुडे वी स्टॉप एंड नेक्स्ट डे वी लर्न कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स.